ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح ہوئی تو مجھے استاد کی آواز آئی، ذیشان سو رہے ہو؟ میں نے کہا کوشش تو رات بھر رہی ہے مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ بولے اچھا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ کیونکہ دن بھر موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، مگر آپ؟ بولے یقیناً میرے لیے نیچے اترنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ میرے پاس اس مقصد کے لیے شاپر موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی۔ بڑی خوشی سے یہ کہہ کر میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں نے اپنا اسمال بیگ اور رائفل وہیں مچان پر چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور فضلہ جات کو بڑی احتیاط سے زمین میں دبا دیا، کیونکہ اس سے دشمن کو ہماری موجودگی کا یقین ہو جاتا اور یہ یقین ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے ساتھ انہیں مزید چوکنا کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کے شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگایا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو مچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر کہہ کر میں نے اسمال بیگ سے واٹر بوٹل نکالی اور استاد صادق سے واٹر بوٹل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا تھا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، آگے بڑھیں لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واکی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر کہہ کر میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے۔ گاہے گاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نگاہ ڈال لیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گولیوں کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو نائٹ ویژن سائٹ لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واکی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹی کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھی اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں، بلکہ اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی جنگل میں ہی تھی۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوسی بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے، ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا بہرحال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں نے دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا میں پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا۔ ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی کہ دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس کی رائفل فائر کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ میں نے کہا استاد جی آپ بھی چلے نا۔ میرے لہجے میں نا تجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے 2 آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا آپ سیدھے وہاں پہنچیں جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی، وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا، میں مرنے والا نہیں، مجھے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے۔ مجھے متذبذب دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے
लेते हुए कहा, वादा करता हूँ जिंदा रहूंगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूंगा। कम से कम ये वजन तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। उसने अपना पिस्तौल, माँ, फालतू मैगजीन के और अपनी वाटर बॉटल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने तकरार करना चाही मगर उसने कता कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज निकालकर मेरी जाने बढ़ा दिया और कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना, ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊंगा। उसकी तंबीह से पहले दुश्मन की जानिब से फायर के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। उसी वक्त हल्की सी ठक मेरी समाज से टकराई और मुझे पता चला कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के इख्तिताम पर ढलान थी, वहां पहुंचकर बंदा यूं भी नजरों से ओझल हो जाता था। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता ना हो। अब तो दुश्मन उस जानिब मुतवज्जे हो गया था और यकीनन हमारा ताक़ुब करके वो आसानी से हमें रास्ते में ही धर लेते। अलबत्ता अगर एक आदमी उनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे भगा दिया था। रास्ते में ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा रही कि उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था। उसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसे एक दूसरा रास्ता मालूम है और मुझसे वादा भी किया था कि वो जिंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका मैंने झुककर दौड़ते हुए तय किया था मगर ढलान से उतरते ही मैं सीधा खड़ा होकर भाग पड़ा। इस नशेब में मैं अंधाधुंध होने वाले फायर से महफूज था। गुज़श्ता रात की पनाहगाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खो में घुस गया और उस्ताद हाशिम का इंतजार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान सोचों में मुख्तलिफ ख्यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चकमा देगा, कहीं दुश्मन उसका ताक़ुब करते हुए उस ठिकाने तक तो नहीं पहुँच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हुआ हो कि उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और समत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस कागज में स्नाइपर राइफल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफल फायर के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात कि वो खराबी उसके अपने हाथों की पैदा की हुई थी। राइफल की फायरिंग पिन कागज में बंद करके उसने मुझे वाज़ेह इशारा दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूं कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है, लेकिन इस तरह कि अपने ज़ेरे कमान की जान को बचा गया था। उस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियां खुलती चली गईं। उसने अपनी राइफल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफल खराब है, लेकिन उसके साथ उस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते हैं कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले करता है। उसने भी यही किया मगर मुझे शक भी न होने दिया। फिर उसने कहा कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है और वो दूसरा रास्ता एक ऐसी समत को जाता था जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी जिंदा है। मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर यहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था। उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं उस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी न जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला मगर मुझे धोखा जरूर दिया था। आज तक इस धोखेबाज को नहीं भुला सका। उस्ताद सादी की आवाज में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके मोहतरम उस्ताद के मुताल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाजा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बॉटल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले कर दी थी कि ये वजनी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दा रहा।
सुबह सादिक को उठकर हमने अपनी फितरी जरूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज्यादा दूर नहीं गया था। मलगजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे। पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से अतराफ का जायजा लेकर वॉकी टॉकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वॉकी टॉकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वॉकी टॉकी की आवाज को मध्यम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज पत्तों पर गुजारना पड़ेगा? बोले, अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? बोले, चश्मे की जगह आपको मालूम है और एक स्नाइपर किसी तरह छुप कर हरकत करता है। ये जानने की जरूरत शायद आपको ना हो। मैंने कहा, मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बोले, अगर आप जख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये खतरा आपको ही मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफ़त भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। बोले, नहीं जीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज्यादा खतरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। बोले, दुश्मन रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना होता है और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट विजन होगा, और ये तो आपको मालूम है कि उसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नजर आती हैं और हर जानदार शय हरारत खारिज करती है। जहां आपको बताते चले कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 इकसाम आ चुकी हैं। पहली किस्म इंफ्रारेड के उसूल पर काम करती है, उसका दिखाव बहुत महदूद था, आजकल उसका इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। दूसरी किस्म उससे बेहतर है और रोशनी के उसूल पर काम करती है, यानी चांद सितारों की रोशनी को बढ़ाकर दिखाती है। और तीसरी जो सबसे बेहतर है, थर्मल इमेजिंग, वो हरारत के उसूल पर काम करती है। मैंने कहा, यानी मुझे अभी रवाना होना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक्त देखा, दिन के 1:30 बज रहे थे। बोले, बिल्कुल, घेरा डालने वाली पार्टी दिन को इतनी चौकन्नी नहीं होगी और मुझे उम्मीद है कि शुमाल की जानिब से आप बासानी निकल सकते हैं। उनका ज्यादा ध्यान मशरकी और जुनूबी समत में होगा। मैंने कहा, लेकिन तलाशी वाली पार्टियां तो चौकन्नी होंगी ना? मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब उनकी तवज्जो मबसूल करवाई। तो फिर वो मुस्तफसर हुए। फिर ऐसा है कि सुबह सादिक के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। उस वक्त पहरेदार उमूमन सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं। गुड, उसने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैंने कहा, यानी आप मुझसे मुत्तफिक हैं? बोले, 100%। मैंने हैरानी से पूछा, तो अभी जाने के हक में क्यों दलाइल दे रहे थे? बोले, बस आपको जांचना था। मैंने कहा, शुक्र है मैं आपके मयार पर पूरा उतरा। बोले, उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को जांचते रहना होता है। मैं हंसा, वैसे दौरान ट्रेनिंग भी आपने काफी ख्वार किया था। बोले, हमारी वही सख्ती आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए है। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा सर, मगर उस्ताद सादिक ने जवाब देना जरूरी न समझा। मंसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को जी नहीं जा रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनी। उन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज्यादती और फिर आने वाले जां गुसल लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन रखा हुआ था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादिक ने आवाज दी, जीशान। मैं चाबुक दस्ती से बोला, मैं तैयार हूँ सर, और दरख्त से नीचे उतर गया। इससे पहले मैं अतराफ का जायजा लेना नहीं भूला था। गो हमने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को बढ़ाने का मूजिब बनता है। और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारी प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। उस्ताद सादिक ने मेरी जानिब मेरा स्मॉल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बॉटल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि ज्यादा पानी ला सको। मैंने इस बात में सर हिला दिया, ठीक है सर। तुलुए आफ्ताब से पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादिक ने मुझे आखिरी नसीहत की और मैंने फी अमानिल्लाह सर कहकर अपनी राइफल कंधे से लटकाई। ग्लॉक 19 पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफल को असॉल्ट राइफल के तौर पर इस्तेमाल करना बेवकूफी है। हरकत करते हुए अच्छी साख्त का पिस्तौल स्नाइपर राइफल से कई गुना ज्यादा कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ निगाह उठाकर मैंने कुतबी सितारे को ढूंढा और फिर बाजू लंबा करके कुतबी सितारे से डिग्री लेने लगा। मैंने कुतबी सितारे से 12 डिग्री दाएं सफर करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपस के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाकफियत भी निहायत जरूरी है। अगर आपके लिए कंपस का इस्तेमाल और डिग्रियों का खटराग यकीनन एक नई चीज है, तो ये समझ लीजिए कि एक दायरे को 360 डिग्रीज में तकसीम किया जाता है। अगर एक आदमी कुतबी सितारे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए तो उसका रुख 0 या 360 डिग्री की तरफ होगा। मशरिक 90 डिग्री, जुनूब 180 डिग्री और मगरिब की समत 270 डिग्री पर वाक़ है। हर समत के दरमियान 90 डिग्री का फर्क है।
कंपस पर ये तमाम डिग्रियां दर्ज होती हैं और किसी भी डिग्री पर सफर करने के लिए बस कंपस की सुई को मतलूबा डिग्री की तरफ करके चल पड़ना होता है। जबकि सितारों की मदद से सफर करने के लिए सितारों के तुलू और गुरूब होने का इल्म और आसमान पर मतलूबा सितारे की जगह का पता होना बहुत जरूरी होता है। तमाम सितारों में फकत कुतबी सितारा ऐसा है जो अपनी जगह नहीं बदलता और हर वक्त कुतबे शुमाली की तरफ चमकता रहता है। बाकी सितारे मशरिक से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होते हैं। अलबत्ता हर सितारे का रास्ता अलग अलग होता है। कोई जुनूब मशरिक से तुलू होता है तो कोई शुमाल मशरिक से और कोई ऐन मशरिक की समत से। मैंने चूंकि शुमाल की जानिब सफर करना था इसलिए मुझे इतनी तगोदौ नहीं करनी पड़ी थी। बस कुतबी सितारे को देखा, हाथ की मदद से 12 डिग्री के फासले का अंदाजा किया और चल पड़ा। कुतबी सितारे के अलावा किसी दूसरे सितारे को समत बरकरार रखने के लिए ज्यादा देर नहीं चुना जा सकता, क्योंकि सितारों का अपना सफर जारी रहता है। इसलिए हर आधे घंटे के बाद पहले वाले सितारे को छोड़कर दूसरा चुनना पड़ता है। मैं गाहे गाहे नाइट विजन में भी झांक कर दाएं बाएं के इलाके को देख लेता। चलते वक्त हद्दुल वसा मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पाँव की आवाज पैदा न हो। गो इस तरह मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी, मगर कभी न पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत बेहतर था। रास्ते में मुझे दुश्मन की कोई पार्टी नजर न आई। यकीनन ज्यादातर पार्टियां मशरकी समत में खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नजदीक घने जंगल में मौजूद थी। दरख्तों का सिलसिला खत्म होने के करीब हुआ तो मेरी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई और मैं करीबन रींग रींग कर आगे बढ़ने लगा। अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी अपने रुख से आहिस्ता आहिस्ता नकाब सरका रही थी। झाड़ियों की आखिरी लाइन के करीब मैं लेट गया। मेरे सामने वही खुश्क नाला था जिसे दुश्मन सफेद नाले के नाम से पुकारता था। इसी नाले की दूसरी जानिब मैंने दुश्मन के सुरेश नामी आदमी को हलाक किया था। मलगजे अंधेरे में मुझे दूर से 2 हयूले अपनी तरफ पड़ते नजर आए। उनके अंदाज से जाहिर था कि वो दोनों संतरी हैं। मैं वहीं दुबक कर लेटा रहा, जहाँ तक कि वो मेरे करीब से गुजरते चले गए। दोनों धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मौजूए सुखन घरेलू मसाइल और तनख्वाह की कमी थी। उनके चंद कदम आगे जाते ही मैं क्रॉलिंग करता हुआ खुश्क नाले से गुजरने लगा। गो ये रिस्क था। मुझे मुकम्मल तौर पर उनकी रूटीन से वाकिफ हुए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वक्त की कमी ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। यूं भी इन दोनों संतरियों का बेपरवाहाना अंदाज इस बात का मजर था कि उन्हें मेरे इस समत आने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पीछे मुड़ने से पहले मैंने नाला उबूर कर लिया था। एक झाड़ी की आड़ लेकर मैंने नाले में निगाह दौड़ाई। पहले नजर आने वाले पहरेदार तो अभी तक नहीं पलटे थे। अलबत्ता वो जिस समत से आए थे उस तरफ से 2 और पहरेदार टहलते हुए आगे आ रहे थे। मैंने उस झाड़ी की आड़ में पीछे खिसकना शुरू कर दिया। अचानक मेरी समाज से किसी के कदमों की आवाज टकराई। वहीं दुबक कर मैंने आवाज की तरफ निगाह दौड़ाई। वो मेरे छुपने की जगह से 2 झाड़ियां पहले बैठ गया था। यकीनन वहाँ टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए सुबह दम जिसका जिधर मुंह होता वो चल पड़ता था। उसके फारिग होने तक मैं वहीं दुबका रहा। उसके वापस पलटते ही मैं रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। रोशनी की जारहियत बढ़ती जा रही थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेता वहाँ से दूर हो गया। तुलुए आफ्ताब तक उस नाले से 400-500 मीटर दूर आ गया था। गो इस इलाके में खतरा कम था, मगर मैंने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा। एक मरहला तो बखैर आफियत गुजर गया था। अब पानी भरकर वापसी का मरहला बाकी था। वापसी के लिए मुझे लाजिमन रात का इंतजार करना पड़ता। मुझे उस्ताद सादिक का ख्याल आया। मैंने सोचा उस्ताद सादिक को आज का दिन भी प्यासा गुजारना पड़ेगा। अब मैं झुके झुके अंदाज में चल रहा था। नाले से चश्मे का फासला करीबन 3 किलोमीटर था। मैं आधे किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और अब गोया 2.5 किलोमीटर का फासला बाकी था। लेकिन ये तमाम रास्ता मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरी रफ्तार सुस्त थी। मैं मजीद 100 मीटर आगे गया हूँगा कि अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। मैं चौंक कर पलटा और एक उभरी हुई चट्टान की आड़ में पीछे की जानिब नजरें दौड़ाने लगा। शायद मैं देख लिया गया हूँ। मेरे जहन में सबसे पहले यही सोच उभरी, मगर मैंने नफी में सर हिलाया और इस सोच को दूर झटका। अगर मैं नजर आ गया होता तो गोलियों का रुख मेरी जानिब होना चाहिए था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर मंजर को मजीद करीब किया और ये देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा कि घेरे में मौजूद तमाम आदमी अपने अपने हथियार सौंते जंगल के अंदर की तरफ भाग रहे थे। अचानक मुझे वॉकी टॉकी का ख्याल आया और मैंने जल्दी से ऑन कर लिया। कोई शख्स चीख चीख कर अपने हलाक होने वाले 2 आदमियों की रिपोर्ट दे रहा था, जिन्हें किसी स्नाइपर की गोली ने लुकमाए अजल बना दिया था। उन्हें मोहतात रहने का मशवरा देकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को उसी समत इकट्ठा होने का हुक्म दे रहा था। उस्ताद सादिक, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने खुद कलामी करते हुए अपनी राइफल कंधे से उतार कर हाथ में थामी और टेलीस्कोप साइट का कवर उतार कर शिस्त लेने लगा। दुश्मन के नाले की अतराफ में मौजूद सिपाही मेरी रेंज में थे। एक बंदे का सर का निशाना लेकर मैंने बगैर किसी झिझक के ट्रिगर प्रेस कर दिया। ट्रेंच की आवाज ने मुझे बौखला दिया था। मैंने जल्दी से राइफल कॉक की, लेकिन मैगजीन खाली था और उसके साथ ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मेरी राइफल नहीं है। मैंने जल्दी से स्मॉल पैक पीठ से उतारा और उसमें मौजूद फालतू राउंड निकालने के लिए अपना हाथ दाखिल किया, मगर मेरा हाथ नामुराद बाहर आया। उस्ताद सादिक ने स्टायर स्नाइपर राइफल की तमाम गोलियां निकाल ली थी।
और उनकी जगह अपना पिस्टल उसने मेरे झोले में रख छोड़ा था। उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे पानी लेने भेजा था, वरना कोई स्नाइपर पानी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया करता। वहाँ सब्जे की बहुतात थी, मगर आसानी से वो सब्जा खा पी कर पानी और खाने की जरूरत से बेफिक्र हो सकते थे। लेकिन वो जानता था कि हम ज्यादा देर इस दरख्त पर नहीं छुपे रह सकते और फिर अपने जख्मी पाँव के साथ उसका सफर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। यही सोचकर उसने मुझे तहफ्फुज देने का सोचा और उस पर अमल कर गुजरा। अचानक फायरिंग की आवाज में शिद्दत आ गई। दुश्मन को हदफ मिल गया था। दरख्त की टहनियां सिर्फ नजरी आड़ मुहैया कर सकती हैं, गोली रोकने की अहलियत नहीं रखती। वायरलेस सेट पर कोई चीखते हुए अपनी कामयाबी की रिपोर्ट कर रहा था और मेरे दिमाग में उस्ताद सादिक की गुफ्तगू गूंज रही थी। ये तो तुम जानते हो कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले किया करता है। उसने सुबह मेरे दरख्त से उतरते ही मेरी राइफल की जगह अपनी राइफल रख दी थी और मेरे स्मॉल पैक से स्टायर स्नाइपर के तमाम राउंड भी निकाल लिए थे ताकि मैं जोश में आकर दुश्मन पर फायर करना न शुरू कर दूं। अलबत्ता अपने उस्ताद हाशिम की तरह अपना पिस्तौल अपने जानशीन के हवाले करना वो नहीं भूला था। धोखेबाज उस्ताद का धोखेबाज शागिर्द। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया और मेरी आंखें भीगती चली गईं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।